Hi everyone, welcome back to Arpita Sharma classes. As I promised you, कि from Monday to Friday we'll be decoding the Hindu newspaper. We'll be doing the Hindu newspaper analysis. But on Saturdays and Sundays we'll be practicing pre-Q. What is pre-Q? Pre-Q basically is preparation for your upcoming prelims examination. I know you must be preparing for prelims 2024 or prelims 2025. So pre-Q is an initiative by Arpita Sharma classes by me Arpita Sharma, wherein we are going to practice on Saturday Sundays 5 to 10 questions. On Saturdays we'll practice 5 questions, Sunday we'll practice 5 to 10 questions, and those questions will be on the pattern of your prelims examination, UPSC prelims examination. Even if you are giving your state PSC exams, then also this particular series is going to be very helpful. Until your prelims we are going to continue this practice. Whatever current affairs you have studied in the entire week, whatever subjects you have studied in your entire week, we'll be practicing them through the prelims based questions. Today is day 1. Let's get started without any delay. Also I would request all of you to prepare a separate register for the pre-Q series. ये जो pre-Q series है इसके लिए एक separate register प्लीज प्रिपेयर करके रखो. उसमें आप क्वेश्चंस भी नोट कर सकते हो, अगर क्वेश्चन नहीं तो सोल्यूशन जरूर नोट डाउन करना एंड डेली रिवाइज करना टिल योर प्रीलिम्स. मेक दिस अ हैबिट. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. पार्टिसिपेट in this pre-Q. Okay, round 1 begins. Question number 1. Have a very serious look towards the screen. Question is saying consider the following statements regarding Union Public Service Commission. चलो UPSC पे ही question पूछ लेते हैं, ठीक है. All expenses for UPSC are paid from the Consolidated Fund of India. UPSC does not involve in the appointment of officers on promotion or deputation. UPSC advises Government of India on any matter referred to the Commission by the President of India. Now read the question very carefully. They are asking how many of the above statements are incorrect. ठीक है, यहीं पर सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे. They read this question मतलब very in a haste and they read it as correct, but they are asking which statement is incorrect. कौन सा statement incorrect है वो आपसे पूछा जा रहा है. ठीक है, तो फटाफट से मुझको इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से. देखो यहाँ पर आप देखोगे वर्ड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट अकाउंट्स. जितने भी गवर्नमेंट अकाउंट्स आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है CFI. रेवेन्यूज विच आर रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, expenses which are made by the government excluding the exceptional items, they are part of consolidated fund of India only. जितना भी रेवेन्यू गवर्नमेंट रिसीव करती है, जितने एक्सपेंस गवर्नमेंट इंकर करती है, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ही पार्ट आते हैं. किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 266 सब सेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल दिस फंड वॉज क्रिएटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड. तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए पॉलिटी के रजिस्टर में. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलिटी. So let's have a look at the answer. कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो ओनली 1 इज इनकरेक्ट. आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कि ओनली 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नाउ दे आर नॉट आस्किंग विच वन, दे आर जस्ट आस्किंग गेस. आपको लगाना है यहाँ पर अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि कितने स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं. इस तरीके का ये पैटर्न चेंज हुआ है. ऑप्शंस. नाउ व्हाट इज द पैटर्न चेंज इन यूपीएससी फ्रॉम लास्ट ईयर? द पैटर्न चेंजेस कि अब वो ऑप्शन पूछने के तरीके उन्होंने बदल दिए हैं. ठीक है, क्वेश्चन तो वही है जैसे पहले आते थे, ऑप्शंस बनाने के तरीके बदल दिए गए हैं. ये आपको पॉइंट याद रखना है. यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग की तिगड़मबाजी आप बढ़ाने की ज़रूरत है. ठीक है, तो मतलब अब ये बात हो गई है कि जो आप पढ़ें उसको कंठस्थ कर लें. फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आप पढ़ रहे हो तो वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए. ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, नहीं. नाउ वट एवर यू आर स्टडिंग इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. ऑलराइट. सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन रहता है? टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस. दैट इज वन वी नो. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो हमको पता है कि पहला फंक्शन क्या रहेगा कि एग्जाम कंडक्ट कराना. सेकंड क्या रहेगा? अब एग्जाम क्यों कंडक्ट होता है? व्हाई द एग्जाम इज कंडक्टेड? फॉर अपॉइंटमेंट, राइट, टू फॉर दी सर्विसेज इन द यूनियन. सो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा. अपॉइंटमेंट के लिए ही तो एग्जाम होता है यूपीएससी का. सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑलरेडी रॉन्ग. Okay, then expenses of UPSC are paid out of CFI. Correct, बिल्कुल correct. All revenues, all expenses, they are related to CFI only. Okay, so that is why statement 2 is wrong. Coming on to the next question. Consider the following statements. Decision of president to issue an ordinance can be questioned in court for being malified.
दैट मीन्स इंटेंशन वॉज रॉन्ग, मैलिफाइड मीन्स कुछ ऐसी चीज जिसके पीछे का इंटेंशन थोड़ा खराब रहा होगा. एन ऑर्डिनेंस लाइक एनी अदर लेजिस्लेशन कैन बी रिट्रोस्पेक्टिव. एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. आपके पास, मैं चैट सेक्शन में देख रही हूँ आपके जवाबों को, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड्स है टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन को आंसर करने का. देखो, अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हो, इफ़ यू आर न्यू स्टूडेंट्स, यू हैव जस्ट एंटर्ड इनटू द प्रिपरेशन, देन यू शुड नो व्हाट एन ऑर्डिनेंस इज. आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस होता क्या है. देखो, व्हाट एग्जैक्टली इज एन ऑर्डिनेंस? इट इज ऑर्डिनेंस, सो इट इज एन ऑर्डर. ठीक है, ये क्या है? ये ऑर्डर है. ऑर्डर कह सकते हो और इसको आप रूल बोल सकते हो, विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, और समबडी हु इज इन पोजीशन और अथॉरिटी कैन बी मेड बाय प्रेसिडेंट. ठीक है, कोई भी जो पोजीशन में है, अथॉरिटी में है, तो उसके द्वारा बनाया गया कोई भी ऑर्डर या कोई भी रूल, उसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं. क्लियर बात समझ आ गई? तो अभी मैंने अपना पॉलिटी का बैच स्टार्ट किया है, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 16 जून से. ठीक है, 2023. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ये जूम क्लासेस पे होगा, तो इंटरेक्शन रहेगा. ठीक है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी. एंड इफ़ यू वांट टू इनरोल, यू कैन इनरोल बाय सेंडिंग अस अ मेल इस ईमेल आईडी पे. ठीक है, ऑन दिस ईमेल आईडी. दिस बैच इज़ फॉर ₹499 ओनली. ओके, तो upscwithEase@gmail.com, यहाँ पर आप इनरोल कर सकते हो पॉलिटी के बैच में. हैंडमेड नोट्स मिलेंगे आपको, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है. लेट्स हैव अ लुक एट द करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस कैन बी क्वेश्चन. येस, इसको क्वेश्चन किया जा सकता है. दैट इज वाई वी हैव अ डेमोक्रेसी. तभी तो हमारे पास डेमोक्रेसी है. ऐसे थोड़ी प्रेसिडेंट जो मन में आया ऑर्डर पास कर देगा, है ना. क्वेश्चन कर सकते हो. ऑर्डिनेंस लाइक एनी अदर लेजिस्लेशन कैन बी रिट्रोस्पेक्टिव. करेक्ट. किसी भी लेजिस्लेशन की तरह, इट इज़ एन ऑर्डर ना, ये एक रूल है, तो किसी भी लेजिस्लेशन की तरह ये भी रिट्रोस्पेक्टिव है. नाउ आप पूछोगे मैम बट व्हाट इज रिट्रोस्पेक्टिव? रिट्रोस्पेक्टिव मीन्स व्हेन यू लुक बैक एट द पास्ट इवेंट्स और सिचुएशंस एंड कंपेयर. ठीक है, तो अगर कोई ऑर्डिनेंस पास हुआ है, आप उसको किसी पास्ट ऑर्डिनेंस या लेजिस्लेशन के थ्रू कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, एंड एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. करेक्ट. बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो जाती है. आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हो, वो तो नहीं हो सकता, है ना. तो करेक्ट आंसर है सी. नाउ ये ऑर्डिनेंस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ दी हुई है, जो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी. ऑर्डिनेंसेस आर लाइक लॉ. अभी मैंने बताया ऑर्डर और रूल ऑफ द गवर्नमेंट, बट नॉट इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के द्वारा इनैक्ट नहीं किए जाते ये. दे आर रिप्रेजेंटेड और प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट. ठीक है, ऑर्डिनेंस जो होते हैं ये लॉ हैं, बट पार्लियामेंट इनको नहीं करता इनैक्ट. इनको प्रेसिडेंट प्रस्तुत करता है, प्रोमलगेट करता है. व्हेन लोकसभा और राज्यसभा और ईदर ऑफ दोज इज नॉट इन सेशन, then president keeps his suggestion, his idea ki this can be made into a law. Okay, so union cabinet's recommendation is a must. If ordinance has to be kept forward by the president, he has to take recommendation from the union cabinet. ठीक है, article 123 deals with ordinance making power of president. This is important for prelims. article 1, 2, 3 ये आपका ordinance से related है. इस तरीके से बॉक्स बना लो. ठीक है, ordinance making power of प्रेसिडेंट. ठीक है, इस तरीके से यू कैन इन आर पॉलिटी क्लास वील मेक फ्लो चार्ट्स लाइक दिस, सो दैट रिवीजन बहुत इजीली हो जाए और इंटरेस्ट आए पॉलिटी पढ़ने में, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ यूपीएससी क्लियर करने के बाद पॉलिटी ही होने वाली है ना, 90% मेजॉरिटी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन ऑर्डिनेंस. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑर्डिनेंसेस. रिजेक्शन ऑफ एन ऑर्डिनेंस वुड इम्प्लाई मीन्स वुड मीन द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट मेजॉरिटी. अगर ऑर्डिनेंस रिजेक्ट हो गया है मतलब गवर्नमेंट की मेजॉरिटी खत्म, गवर्नमेंट अब निष्कासित. If an ordinance makes a law that parliament is not competent to enact under constitution, it shall be considered void. अगर ordinance से कोई ऐसा law बनाने की बात की जा रही है जो पार्लियामेंट, इतनी ताकत नहीं पार्लियामेंट में कि उसको इनैक्ट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो वो ऑर्डिनेंस ही वॉइड हो जाएगा, नल एंड वॉइड. इफ एन ऑर्डिनेंस लैप्सेस, अगर ऑर्डिनेंस ही लैप्स हो गया तो ओनली ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट इज टू री इशू और रीप्रोमलगेटेड. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब आपको ये नहीं पूछा गया स्पेसिफिकली विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. दिस इज नॉट बीन आस्क्ड. दे आर आस्किंग व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट्स कैन बी करेक्ट. इनमें से कौन से 3 करेक्ट हैं? स्पेसिफिकली दे आर नॉट आस्किंग यू टू पॉइंट आउट. ओके, यही ट्रिक है. दिस इज द ट्रिक इन द न्यू पैटर्न ऑफ यूपीएससी दिस टाइम. ठीक है, सो हियर व्हाट इज नीडेड? सॉलिड होल्ड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज नीडेड, तभी आप बता पाओगे.
है ना। सो हेयर करेक्ट आंसर वुड बी सी, ऑल द अबव आर करेक्ट, तीनों ही करेक्ट है। ऑर्डिनेंस जो है, अगर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज नॉट empowered टू इनैक्ट अ लॉ ऑन दैट ऑर्डिनेंस, देन इट विल बी void. कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम ना, तो सेकंड स्टेटमेंट इज आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट है, सही बात बोल रहा है ना। Rejection of ordinance would imply government has lost majority. Rejection of ordinance implies government has lost majority. Ordinance may lapse. कैसे lapse होता है? If president withdraws it, या तो president वापस ले लेता है, और both houses passes resolution disapproving it, and ordinance can be promulgated by, what did we study? When union cabinet recommends it. और अगर दोनों ही houses उसको accept नहीं कर रहे तो क्या होगा, तो लैप्स हो जाएगा, तो मेजोरिटी भी खत्म हो रही है ना, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा हाउसेस को गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के ऊपर। ओके, सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अभी न्यूज में था, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम फैसिलिटेट्स इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर। Scheme provides investors an opportunity to invest only in primary market and not in secondary market. SGB sovereign gold bonds are kept out of the scheme. बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, ध्यान से पढ़ना, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत बतानी है स्टेटमेंट। 5 सेकेंड्स का टाइम है, फटाफट से बताओ। आई एम लुकिंग एट द चैट सेक्शन, फटाफट से 5 सेकेंड्स का टाइम है। ऑल राइट, लेट्स हैव अ लुक। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, 2 स्टेटमेंट्स ही गलत है। ये जो स्कीम है आरबीआई आरडी स्कीम जो है, आरडी आपको पता है, ठीक है, रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। स्कीम प्रोवाइड्स इन्वेस्टर्स एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, इन अ हैसल वे मैनर। अब यहाँ है किन मार्केट्स में, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों मार्केट्स में हो सकता है। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, जहाँ ओनली वर्ड आ जाता है 99% टाइम वो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होती हैं, ठीक है, तो दैट इज़ वाई सेकेंड इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है ना, यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें लिखा हुआ है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर केप्ट आउट, नो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है, ये भी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, दैट इज वाई, सो 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द टर्म्स absorptive capacity and carrying capacity are used in the discourse of employment elasticity, geographical determinism, evolutionary biology, sustainable development। देखो ये तो आपके क्वेश्चन से ही आंसर पता चल रहा है, कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, ओके, ऐसी काबिलियत जो एब्जॉर्व कर सके, कैरी कर सके, तो वो किस संदर्भ में यूज़ की जाएगी, वेरी इजी, येस, डी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, these such kind of resources which can absorb, which can carry forward, renewable resources, non-renewable, both are इसमें included, ठीक है, that is included in the context of sustainable development। तो यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए। आई होप आज की क्लास अच्छी लगी हो, इंटरैक्टिव लगी हो। अगर कोई डाउट आता है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग एनीथिंग, आई एम हेयर फॉर यू। 10th जून से आपके रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पे स्टार्ट हो रही हैं, फॉर एस्से, फॉर एथिक्स, फॉर ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी। तो घबराने वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, मैं तो आपके साथ ही हूँ एटलीस्ट। Okay, on this note we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the lecture. आपका बहुत बहुत शुक्रिया।